تو نکل کر کے آتی جو آپ نے کہا تھا، نکل کر کے یہاں بھی آتی وہاں بھی آتی، کہاں تک نہیں جاتی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کھرچ لیں تو ہندو مسلمان سکھ عیسائی پتہ نہیں کہیں سے نکل کر کے چلے آتے ہیں۔ اور اس لیے سیاست داروں کے لوگوں کا وشواس اٹھنے لگا، لوگ اب ملا اور ہمارے مولویوں کے پاس اور پنڈتوں کے پاس بھی جانے سے گھبرانے لگے۔ وہ آتے ہیں تو صرف آپ لوگ کے پاس آتے ہیں، شاید یہاں سے راہ مل سکے۔ ایک چھوٹی بہن کی چھوٹی سی غزل ہے، چہرے چاند ستاروں کے جیسے غم کے ماروں کے، چہرے چاند ستاروں کے جیسے غم کے ماروں کے، جن کو آگ میں جھونکا ہے پھول تھے وہ گلزاروں کے، جن کو آگ میں جھونکا ہے پھول تھے وہ گلزاروں کے، دھرتی پر نفرت بونا کام ہے یہ غداروں کے۔ کوئی بھی کرے، دھرتی پر نفرت بونا کام ہے یہ غداروں کے، دکھ سہنا اور آنسو پینا بھاگ میں ہم بیچاروں کے۔ اور آخر ہے مندر مسجد کے جھگڑے پیٹ بھرے اخباروں کے، مندر مسجد کے جھگڑے پیٹ بھرے اخباروں کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنے والے۔ ہمیں اپنے اپنے دور سے گزرنا ہے، لیکن میں آپ سے کہوں کہ اردو میری پہلی زبان ہے، کیونکہ میرے پتا جی نے جو خود بہت بڑے اردو کے شاعر بھی تھے بھوپال سے، اور اس کے علاوہ عربی اور فارسی بھی ان کے اس پہ تھی۔ ہم لوگ اوریجنلی گجرات کے ہیں، اور وہاں شین و کاف راجستھان کی طرح ہمارا بھی خط ہوتا ہے۔ ان کا پہلے مسجد میں جاؤ، الف بے پے پڑھو، شین و کاف ٹھیک کرو، پھر اس کے بعد دوسری پڑھائی کرنا۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اب آخر میں ایک ترنم میں تھوڑا سا جو آپ نے کہا پیار کے نغمے میں بات کر لیں، اور میں ترنم میں کہنے کی کوشش کروں۔ کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں، ذرا دے مجھے سہارا، کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں، ذرا دے مجھے سہارا، تیری یاد کے علاوہ نہیں اب میرا گزارا، کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں، ذرا دے مجھے سہارا، وہی روپ کے اجالے، وہی روپ کے اجالے، وہی روپ کے اجالے، وہی چاندنی کے سائے، میری آنکھ ڈھونڈتی ہے اب تک وہی نظارہ، کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں، ذرا دے مجھے سہارا۔ عرض کرتی ہوں، یہ ہے ریت کا سمندر، یہ ہے ریت کا سمندر، یہ ریت کا سمندر، یہاں چھاؤں جل رہی ہے، یہ ریت کا سمندر، یہاں چھاؤں جل رہی ہے، تو جو ساتھ ہو تو مجھ کو یہ سفر بھی ہے گوارا، تو جو ساتھ ہو تو مجھ کو یہ سفر بھی ہے گوارا، جہاں زور تھا بھنور کا وہاں کوئی ڈر نہیں تھا، جہاں زور تھا بھنور کا وہاں کوئی ڈر نہیں تھا، وہیں ڈوبنے کا ڈر ہے جہاں پاس ہے کنارہ، کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں۔ اور دو شعروں کو
खंजर को रगे जान से गुजरने नहीं देगा, खंजर को रगे जान से गुजरने नहीं देगा। वो शख्स मुझे चैन से मरने नहीं देगा, खंजर को रगे जान से गुजरने नहीं देगा। फिर नहीं आस वो दे जाएगा दिल को, फिर नहीं आस वो दे जाएगा दिल को। टूटे हुए शीशे को बिखरने नहीं देगा, टूटे हुए शीशे को बिखरने नहीं देगा। तो जो चाहूंगी, दिन ढलते निकल आएगा फिर याद का सूरज, दिन ढलते निकल आएगा फिर याद का सूरज। साया मेरे आंगन में उतरने नहीं देगा, वो शख्स मुझे चैन से मरने। पे बैठा है तो तमाम रात शायरों ने कहा मंत्री जी तवज्जो दीजिए, मंत्री जी तवज्जो दीजिए। सारी रात मंत्री जी से तवज्जो मांगी गई कि मंत्री जी से बात करेंगे और बहुत जल्द इन सबको एक एक तवज्जो दी जाएगी। तो इस तरह के हादसे भी हमारे साथ होते हैं। बहरहाल मुबारकबाद आप सबको। रोक ना पाता गुजर गया होता, मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। चार मिसरे हजरात और देखिए, मुझे भी अपनी किस्मत पर हमेशा नाज रहता है, मुझे भी अपनी किस्मत पर हमेशा नाज रहता है। सुना है ख्वाहिशें उनकी भी शर्मिंदा नहीं रहती, मुझे भी अपनी किस्मत पर हमेशा नाज रहता है। सुना है ख्वाहिशें उनकी भी शर्मिंदा नहीं रहती, सुना है वो भी अब तक खाए बैठी हैं कई शौहर। सुना है वो भी अब तक खाए बैठी हैं कई शौहर, बहुत दिन तक मेरी भी बीवियां जिंदा नहीं रहती। क्या कहना मुझे भी अपनी किस्मत पर हमेशा नाज रहता है। सुना है ख्वाहिशें उनकी भी शर्मिंदा नहीं रहती, सुना है वो भी अब तक खाए बैठी हैं कई शौहर, बहुत दिन तक मेरी भी बीवियां जिंदा नहीं रहती। कैसा नसीब लाए हैं पपलू लिखा के हम, कैसा नसीब लाए हैं पपलू लिखा के हम। अरे माशूक मेरे साथ था टीटी ने धर लिया, कैसा नसीब लाए हैं पपलू हम, माशूक मेरे साथ था टीटी ने धर लिया। अरे पंजे से उसकी निकले थे कुछ दे दिला के हम, अरे पंजे से उसकी निकले थे कुछ दे दिला के हम, लेकिन प्लेटफॉर्म पे बीवी ने धर लिया, लेकिन प्लेटफॉर्म पे बीवी ने धर लिया। चार मिसरे हजरात बिल्कुल नए हैं, रास्ते में उभे हैं, अगर भूल जाएं तो बाद में ठीक कर लिएगा। राहत भाई से पूछ लीजिएगा, राहत भाई की नजर करना चाहता हूं। ये हमारे दौरे हाजिर के पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के ये चमकता हुआ चांद कहिए या सूरज कहिए,
کوئی نہیں ہے ان کے، سمجھ لیجیے جس جہاں یہ جاتے ہیں وہاں صرف چھکے ہی پڑتے ہیں اور باقی کا تو اللہ ہی خیر کرے۔ سنیے کہ چلم میں آگ ہے جب تک چلم بردار باقی ہیں، چلم میں آگ ہے جب تک چلم بردار باقی ہیں، جوانی کے ابھی تک آپ میں آثار باقی ہیں۔ چلم میں آگ ہے جب تک چلم بردار باقی ہیں، جوانی کے ابھی تک آپ میں آثار باقی ہیں۔ یہ چکنی صورتیں اب بھی فدا ہیں آپ کے اوپر، یہ چکنی صورتیں اب بھی فدا ہیں آپ کے اوپر، ابھی تک راکھ میں شعلے میرے سرکار باقی ہیں، ابھی تک راکھ میں شعلے میرے سرکار باقی ہیں۔ بند رکھتے ہیں زباں لب نہیں کھولا کرتے، بند رکھتے ہیں زباں لب نہیں کھولا کرتے، بند رکھتے ہیں زباں لب نہیں کھولا کرتے، چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے، چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے، بند رکھتے ہیں زباں لب نہیں کھولا کرتے، چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے۔ بہت شکریہ دوستوں، اور یہ غزل کا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ آج تو بھی شیشے کی طرح بول پڑے، شیشے کی طرح بول پڑے، آج تو بھی شیشے کی طرح بول پڑے، ہم تو سمجھے تھے کہ پتھر نہیں بولا کرتے، ہم تو سمجھے تھے کہ پتھر نہیں بولا کرتے، آج تو بھی شیشے کی طرح بول پڑے، ہم تو سمجھے تھے کہ پتھر نہیں بولا کرتے۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، یہ اہل فہم اہل علم کا مجمع شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے، فاصلہ کتنا ہے اس ڈالی سے اس ڈالی کا، فاصلہ کتنا ہے اس ڈالی سے اس ڈالی، فاصلہ کتنا ہے اس ڈالی سے اس ڈالی کا، اتنا اڑنے کے لیے پر نہیں تولا کرتے، اتنا اڑنے کے لیے پر نہیں تولا کرتے، اتنا اڑنے کے لیے پر نہیں تولا کرتے، لب ہلانے کی بھی قیمت انہیں دی جاتی ہے، لب ہلانے کی بھی قیمت انہیں دی جاتی ہے، یہ شرافت سے کبھی منہ نہیں کھولا کرتے، یہ شرافت سے کبھی منہ نہیں کھولا کرتے، لب ہلانے کی بھی قیمت انہیں دی جاتی ہے، یہ شرافت سے کبھی منہ نہیں کھولا کرتے، جانے جاتے ہیں اسی بات سے دنیا بھر میں،
जाने जाते हैं इसी बात से दुनिया भर में, हम किसी और की बोली नहीं बोला करते, हम किसी और की बोली नहीं बोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला। न टीस है न कसक है न आह है दिल में, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या। और बहुत दिनों से है बस इंतजार का मौसम, बहुत दिनों से है बस इंतजार का मौसम, यहाँ कोई नहीं आता तो घर सजाएं क्या, यहाँ कोई नहीं आता तो घर सजाएं क्या, यहाँ कोई नहीं आता तो घर सजाएं क्या। हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाएं क्या, जो दिल ही बुझ गया। हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाएं क्या, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाएं क्या। और चंद अशार पहली बार हाजिर हुई हूँ, हुक्म मिला है इसलिए हाजिर कर रहे हैं कि सुबह को यूं शाम शब को यूं सहर मैंने किया, सुबह को यूं शाम शब को यूं सहर मैंने किया, तेरा जलवा हर तरफ था रुख जिधर मैंने किया, तेरा जलवा हर तरफ था रुख जिधर मैंने किया। ये मेरे अंदर की औरत तो घरेलू ही रही, ये मेरे अंदर की औरत तो घरेलू ही रही, ये तेरे दीवारों दर थे इनको घर मैंने किया, ये तेरे दीवारों दर थे इनको घर मैंने किया। और इस सलीके से निभाई सारी जिम्मेदारियां, इस सलीके से निभाई, इस सलीके से निभाई सारी जिम्मेदारियां। फूल को खुशबू तो शाखों को समर मैंने किया, फूल को खुशबू तो शाखों को समर मैंने किया। मैं सजाना चाहती थी घर को फूलों से नसीम, मैं सजाना चाहती थी घर को फूलों से नसीम, इसलिए कांटों के बिस्तर पर बसर मैंने किया, इसलिए कांटों के बिस्तर पर बसर मैंने किया, इसलिए कांटों के बिस्तर पर बसर मैंने किया। शाख को झुकना ही पड़ता है समर जैसा भी हो, सुनिएगा, शाख को झुकना ही पड़ता है समर जैसा भी हो, जैसा भी हो। अहमियत है सिर्फ साए की शजर जैसा भी हो, अहमियत है। शायद सुना हुआ है, आपके सन्नाटे से मुझे लग रहा है नहीं। अगर आप लोग, मैं पहली बार आई हूँ, आप लोग ताजगी से सुने तो मैं सुनाऊंगी, नहीं तो मैं बहुत ताजा शेर भी सुनाने का दम रखती हूँ, ऐसे ताजा जैसे कि अभी सुनाए थे, ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन आप सुने तो ताजगी के साथ सुने, क्योंकि पहली बार आई हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि मैं पहली बार बिल्कुल ताजा ही सुना रही हूँ। शाख को झुकना ही पड़ता है समर जैसा भी हो, अहमियत है सिर्फ साए की शजर जैसा भी हो। तुम बहुत अच्छे हो दुनिया खूबसूरत है तो क्या, तुम बहुत अच्छे हो दुनिया खूबसूरत है तो क्या, लौट कर वापस वहीं जाना है घर जैसा भी हो, लौट कर वापस वहीं जाना है घर जैसा भी हो। और साथ चलना मसलहत भी और मजबूरी भी है, साथ चलना मसलहत भी और मजबूरी भी है, और मजबूरी भी है। रास्ता तो काटना है हम सफर जैसा भी हो, रास्ता तो काटना है हम सफर जैसा भी हो। हर खता जो भूल जाए ममता क्या चीज है, हर खता जो भूल जाए ममता क्या चीज है। माँ का साया सर पे हो तो फिर दुआ क्या चीज है, माँ का साया सर पे हो तो फिर दुआ क्या चीज है। इन चरागों को बुझाना इस कदर आसान नहीं। सुनिएगा ये शेर एक पैगाम की सूरत। इन चरागों को बुझाना इस कदर आसान नहीं, हाथ को दीवार कर लो ये हवा क्या चीज है, हाथ को दीवार कर लो ये हवा क्या चीज है, हाथ को दीवार कर लो ये हवा क्या चीज है। और हया आंखों से चेहरे से शराफत छीन लेती है,
حیا آنکھوں سے چہرے سے شرافت چھین لیتی ہے، میرے جیسوں کی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے، میرے جیسوں کی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے حاضر کر رہی ہوں کہ وفاداروں پہ شک کرنا تو پھر انجام سے ڈرنا، وفاداروں پہ شک کرنا تو پھر انجام سے ڈرنا۔ وفاداری کا ہر جذبہ بغاوت چھین لیتی ہے، وفاداری کا ہر جذبہ بغاوت چھین لیتی ہے۔ امیروں کے لیے ساری رعایت ہر عنایت ہے، امیروں کے لیے ساری رعایت ہر عنایت ہے، غریبوں کے نوالے بھی سیاست چھین لیتی ہے، غریبوں کے نوالے بھی سیاست چھین لیتی ہے، غریبوں کے نوالے بھی سیاست چھین لیتی ہے۔ اور ایک شعر یہ حاضر کر رہی ہوں، دیکھتی ہوں کون مائیکا لال چپ رہتا ہے، سنیے گا۔ منافق دوستوں سے لاکھ بہتر ہے کھلا دشمن، منافق دوستوں سے لاکھ بہتر ہے کھلا دشمن، کہ غداری نوابوں سے حکومت چھین لیتی ہے۔ اس نے رکھا ہے حفاظت سے ہمارے غم میں، عورتوں سے کبھی زیور نہیں پھینکا جاتا۔ یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد جلد واپس لوٹیں گے۔ اب موٹ کرے ہوا فریس تو دیکھ رہا بھیا جنتا ایکسپریس۔ ارے موٹ کرنا ہے فریش تو دیکھتے رہیے جنتا ایکسپریس، ہر رویوار صبح 11:30 بجے صرف ETV بہار۔ اس कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। डूबने वालों में एक और इजाफा ही सही। डूबने वालों न घबराओ कि हम आते हैं। चलिए रुख करते हैं एक बार फिर से दिलकश महफिल की ओर। मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। और सिर्फ 2 शेर, उसके बाद इजाजत चाहूंगी कि साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है। और एक सच्चा शेर जो मेरी माँ ने मुझे दिया, ये किसी एक जो रिवायत चली आ रही है कि ये सब कह रहे हैं तो मैं भी कहूं, ऐसा नहीं है। माँ ने एक लफ्ज कहा और उस पर मुझे ये शेर मिल गया, सुनिएगा। साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है। माँ जो मुझसे रूठी है मैं उसे मना लूंगी, माँ जो मुझसे रूठी है मैं उसे मना लूंगी, मैं उसे मना लूंगी। मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है, मोम के पिघलने में। तूफान से लड़ने का सलीका जरूरी, हम डूबने वालों की हिमायत नहीं करते। ये मेरी शनाख्त के तौर पर इसमें एक शेर है जो जिसने मुझे पूरी दुनिया में मेरी पहचान दी है। सुनिएगा ये गजल। फिर अजनबी फजाओं से जोड़ा गया मुझे, फिर अजनबी फजाओं से जोड़ा गया मुझे। मैं फूल थी सो शाख से तोड़ा गया मुझे, मैं फूल थी सो शाख से तोड़ा गया मुझे। और सुनिएगा ये शेर खास तौर से। मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी, मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी,
मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी तोड़ा गया मुझे, कभी जोड़ा गया मुझे, तोड़ा गया मुझे, कभी जोड़ा गया मुझे। और ये शेर जिसने मुझे मेरी शनाख्त दी है, सुनिएगा खास तौर से। मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, फूलों का बोझ डाल के मोड़ा गया मुझे, फूलों का बोझ डाल के मोड़ा गया मुझे। और अब जाते जाते मैं ये आखिरी 2-3 शेर ताज़ा सुना दूं, वरना आप लोग जो ये बुझे बुझे दाद दे रहे हैं, इससे मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। सुखन भी ज़ाया हो रहा है और आपकी भी कुव्वत ज़ाया, एनर्जी ज़ाया हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप लोग खर्च हो चुके हैं मुझसे पहले, तो मेरे तक आते आते बहुत थक गए, इसलिए मैं ताज़ा शेर सुना रही हूँ। मतला हाजिर कर रही हूँ, बिल्कुल ताज़ा मतला है और उसी ताजगी से सुनिएगा जितना ताज़ा मतला है। अब न वो लड़कपन है, अब न वो जवानी है, सुनिएगा हज़रात। अब न वो लड़कपन है, अब न वो जवानी है, वो अलग कहानी थी, ये अलग कहानी है, वो अलग कहानी थी, ये अलग कहानी है। लड़कियों पे क्या गुजरी कुछ बता नहीं पाती, ये इस हादसे से 1 साल पहले मैंने 1-2 साल पहले ये शेर कहा था, सुनिएगा। लड़कियों पे क्या गुजरी कुछ बता नहीं पाती, जख्म उम्र भर का है और बेज़बानी है, जख्म उम्र भर का है। लग गई किनारे से सारी कश्तियां, जितने बुजुर्ग हजरात हैं सबकी तवज्जो चाहूंगी। लग गई किनारे से सारी कश्तियां, इस नदी की मौजों में आज भी रवानी है, इस नदी की मौजों में आज भी रवानी है। और नौजवान यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, आज के इस मीडिया, टेक्नोलॉजी, क्रिकेट, फिल्म के दौर में आप अपनी तहजीबी विरासत की असास की हिफाजत पूरी रात से इस तरीके से कर रहे हैं और नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद है, ये देखकर दिल खुश हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि 1-2 शेर अपने नौजवानों की नजर कर दूं। नहीं, ये जरूरी भी है, उनकी हौसला अफजाई भी जरूरी है और मशवरा भी बहुत जरूरी है। इसको नोट कर लेना डायरी में, तुम्हारे काम आएगा। लाख हमने समझाया, हमने मतलब ये हमारे जितने साथ के बुजुर्ग बैठे, लाख हमने समझाया प्यार व्यार मत करना, लाख हमने समझाया प्यार व्यार मत करना, नौजवान लड़कों ने बात किसकी मानी है, नौजवान लड़कों ने। और ये मशवरा क्यों दिया, उसके हवाले से ये शेर सुनिएगा।
नाप तौल कर घर वर हैसियत पे मरती हैं।